Assalamu alaikum students. Today I am going to explain plant tissues from chapter number 4 cells and tissues. इसका मैं PDF यानी कॉपी वर्क आपको पहले दे चुकी हूँ. Today I will explain it. You all know that the group of similar cells that work together to perform a certain function is known as tissue. So in plant cells they are also grouped into tissues which perform certain functions such as photosynthesis, transport, etc. Okay, so there are two major groups of tissues in plants. Number one, meristematic tissues, and other is permanent tissues. If we talk about meristematic tissue, which is the major group of plant tissue, it consists of cells which are capable of cell division. यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में वो सेल्स होते हैं जो इनमें सेल डिवीजन हो सकती है. अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? The cells are thin walled. They have large nucleus and number of small vacuoles. इनकी सेल्स जो हैं थिन वॉल्ड होते हैं, इनमें बड़े न्यूक्लियस होते हैं और इनमें छोटे वैक्यूल्स होते हैं. यूजुअली दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, सो द सेल्स आर अरेंज कम्पैक्टली. यानी इनके जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं. ठीक है. Now we are talking about types of meristematic tissues. There are two types of meristematic tissues. Number one is apical meristems and other is lateral meristems. Apical meristems tissues are present at the apex of roots and stems. चूँकि ये रूट्स की और स्टेम की अपेक्स में पाए जाते हैं इसीलिए इनको एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं. अच्छा जी. स्टेम्स एंड रूट्स इंक्रीजेज इन लेंथ बाय द डिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज़. इन सेल की टिश्यूज़ की सेल डिवीजन की वजह से स्टेम और रूट्स अपनी लेंथ में इजाफा करते हैं और इस तरह की ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं. अब मेरिस्टेमेटिक की सेकेंड टाइप लेटरल मेरिस्टेम्स पढ़ते हैं. Lateral meristems are located on the lateral sides of roots and shoots. By division, they are responsible for increase in grid of plant parts. This growth is called secondary growth. Lateral meristematic जो हैं lateral side यानी साइडों पे होते हैं रूट और शूट के, और इनकी डिवीजन की वजह से इनकी मोटाई में इजाफा होता है. ठीक है. प्लांट्स के पार्ट्स की मोटाई में इजाफा होता है और ऐसी ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं. नाउ वी हैव सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू विच इज़ परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यूज़ आर मैच्योर सेल्स विच आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिविजन. यानी ये सेल्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं और इनमें सेल डिविजन नहीं पाई जाती. अब हम परमानेंट टिश्यूज़ की टाइप्स के बारे में बात करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़. नंबर वन इज़ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड अदर इज़ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल. यानी ये एक जैसे सेलों से बने हुए होते हैं. ठीक है. There are three types of simple permanent tissues. Number one is epidermal tissues, number two ground tissues, and number three is supporting tissues. Now we will talk about epidermal tissues. These are the tissues which are composed of single layer of cells and they cover whole plant body. ठीक है. अच्छा, ये क्या करते हैं? They are responsible for the absorption of water and minerals. On stem and leaves they secrete cutin. The coating of cutin is called cuticle which prevents evaporation. ठीक है. तो ये क्या चीज़ है कि ये जो है वो आउटर कवरिंग है और ये ज़्यादा पानी जो है एक्सक्रीट आउट करने से बचाते हैं प्लांट्स को. अच्छा, कैसे कि ये एक आउटर कवरिंग प्रोड्यूस कर देते हैं जो वैक्स की तरह से होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं. Epidermal tissues also have specialized structures that perform specific functions. For example, root hairs and stomata. इनके ऊपर root hairs और stomata भी पाए जाते हैं. Now we have second type of simple permanent tissues which is ground tissues. अच्छा जी. ground tissues क्या होते हैं?
These tissues are made up of parenchyma cell. ठीक है, ये parenchyma cell से बने होते हैं. They are spherical and flat at the point of contact. ये spherical होते हैं, गोल होते हैं, और they have thin primary cell wall. इनकी जो cell wall होती है वो बहुत पतली होती है. They have large vacuoles for storage of food. ये storage of food करते हैं, तो इसलिए इनमें बड़े बड़े vacuoles होते हैं. In leaves दे आर नोन एज मीज़ोफिल. मीज़ोफिल भी वही होता है कि वहाँ पे क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्लोरोफिल स्टोर करता है, तो ये लीव्स, ग्राउंड टिश्यूज लीव्स में मीज़ोफिल कहलाते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव थर्ड टाइप ऑफ टिश्यूज़, थर्ड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू विच इज़ सपोर्टिंग टिश्यूज़. ठीक है. अब क्या है कि द टिश्यूज़ विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द प्लांट्स आर कॉल्ड सपोर्टिंग टिश्यूज. सपोर्टिंग से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये सपोर्ट करते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इसलिए इनको सपोर्टिंग टिश्यूज कहते हैं. ठीक है. दे आर स्ट्रक्चर, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू प्लांट. ये जो है प्लांट को रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. अब इनकी भी टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर आपके पास टाइप्स में 2 टाइप्स हैं, collenchyma and sclerenchyma. Now we are talking about collenchyma. Collenchyma is a tissue composed of living, elongated cells having unevenly thickened प्राइमरी सेल वॉल. इसकी मोटी मोटी दीवारें होती हैं. ठीक है. और ये जो है लिविंग और एलोंगेटेड सेल से बने हुए होते हैं. दे आर मोस्टली फाउंड इन द कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम. ठीक है. मिडरिब्स ऑफ लीव्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर. ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं? ये हमारे पास पाए जा रहे हैं स्टेम्स में. मिडरिप आपने देखी है, पत्तियों के दरमियान एक मोटी सी वेन होती है, दैट इज मिडरिप. ये वहाँ पाए जाएंगे. ठीक है, क्योंकि ये मोटे हैं और इनकी वॉल्स जो है थिक है. अब ये फंक्शन क्या करते हैं? दीज टिश्यूज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट्स. ठीक है. ये भी आपको, क्योंकि हमने पहले ही बोला था सपोर्टिंग टिश्यूज है, तो ये हमारे पास कोलेनकाइमा भी इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है. नाउ वी हैव स्क्लेरेनकाइमा. द स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ थिक एंड रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल्स ऑफन यूनिफाइड. यानी ये मिल के यानी बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं. ठीक है. और क्या है? थिक है, रिजिड है उनकी सेल वॉल्स. और ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर ऑफन फाउंड इन जाइलम एंड हार्ड फ्रूट कोट्स एक्सेट्रा. ये जाइलम में, जाइलम आपको पता है, जाइलम आर ट्यूब्स. ठीक है. तो ये जैसे कि आपके रूट्स में पाई जाती हैं, लीव्स में उसमें पाई जाती हैं, स्टेम्स में पाई जाती हैं, जो कि कंडक्ट करते हैं वाटर एंड फूड. तो जो है ये इसकी वजह से आपके पास क्या चीज़ है, ये भी हार्ड है. और फ्रूट कोट्स यानी फ्रूट के जो छिलके होते हैं वो भी, उसमें भी ये पाया जाता है. ठीक है. और इसके अंदर क्या है? दे कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स. द सेल वॉल्स आर लिग्निफाइड. ये जो है जो इनके सेल होते हैं वो डेड होते हैं, और इनकी सेल वॉल जो है लिग्निंग की वजह से थिक हो जाती है और वुडी हो जाती है. स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर सिंपल टिश्यूज़. नाउ वी आर स्टार्टिंग कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़. जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये कॉम्प्लेक्स होंगे. A plant tissue is composed of more than one type of cell is called compound और complex tissues. यानी एक से ज़्यादा सेल के जब टिश्यूज़ बने हुए होते हैं तो इनको हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहते हैं. इसकी क्या टाइप्स या एग्जांपल्स हैं? उनके टाइप्स या एग्जांपल्स आर जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है. जाइलम क्या चीज़ होती है? द टिश्यूज़ दैट फंक्शंस टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम. जाइलम क्या होते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल रूट्स से पूरे बॉडी, प्लांट बॉडी के अंदर. ठीक है. ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इनसाइड द फ्लोएम. ठीक है. फ्लोएम के अंदर पाए जाते हैं. अब इनका स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ ट्रैकीड्स एंड वेसल्स. ट्रैकीड्स क्या होती हैं? ट्रैकीड्स जो है पतली पतली लंबी नालियाँ होती हैं जो कि पतले एंड्स की होती हैं. और वेसल्स क्या होते हैं? वेसल्स आर नॉन लिविंग, शॉर्ट, वाइड एंड स्टॉक एंड फॉर्मिंग द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विद परफोरेटेड वॉल्स. इसके परफोरेटेड यानी सुराखदार इनकी
वॉल्स होती हैं और ये पतली वॉल्स होती हैं और इसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज़ देयर फंक्शन, यानी आपको जैसे कि मैंने पहले बताया जाइलम का क्या फंक्शन है। ये ट्रांसपोर्ट वाटर करता है, मिनरल करता है रूट से पूरे एरियल पार्ट्स को, ठीक है, किसके ज़रिए, एसेंट ऑफ सैप के ज़रिए। अच्छा, दे ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द प्लांट, ये सपोर्ट भी करता है क्योंकि ये हार्ड होता है। इसमें लिग्निंग है, लिग्निंग एक ऐसा मटेरियल है जो प्लांट को वुडी जो है स्ट्रक्चर देता है, हार्ड करता है, ठीक है। टिश्यूज़ की सेकेंड टाइप फ्लोएम है। व्हाट इज़ फ्लोएम, द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फ्लोएम। ये क्या है, लीव्स से जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे प्लांट तक जो पहुंचाता है वो फ्लोएम होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स और कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द जाइलम, ये जाइलम के बाहर पाया जाता है, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फ्लोएम इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 elements. Number 1 is sieve tube, number 2 is companion cell, number 3 is phloem parenchyma, and number 4 is phloem fibers. And number 1, हम जब sieve tube की बात करते हैं, they are elongated living cells with perforated end walls which do not have nucleus and are मेनली कंडक्टिंग सेल्स, ठीक है। सिव ट्यूब्स क्या हैं, वो लिविंग सेल्स हैं, एलोंगेटेड हैं, इनकी जो वॉल्स हैं वो सुराखदार या मसामदार होती हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और ये भी कंडक्टिंग सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं। उसके बाद क्या आता है, कंपेनियन सेल्स विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सिव ट्यूब्स, जो कि बिल्कुल सिव ट्यूब्स के बराबर होते हैं एंड यानी बराबर में पाए जाते हैं, एंड दे कंट्रोल द सिव ट्यूब्स, और ये सिव ट्यूब को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इसका पार्ट है वो है फ्लोएम पेरेन्काइमा। दे आर मेनली कंसर्न विद स्टोरेज ऑफ फूड, ये भी फूड स्टोरेज के काम आता है। और उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो फ्लोएम फाइबर्स हैं। फ्लोएम फाइबर्स आर एलोंगेटेड सेल विथ लिग्निफाइड सेल्स, इसकी सेल वॉल्स जो होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं क्योंकि लिग्निंग पाया जाता है। लिग्निंग ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इसकी वॉल्स को स्ट्रेंथ या वुडी बनाता है, ठीक है। अब हम ओवरऑल अगर फ्लोएम के फंक्शन को देखते हैं तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, दे ट्रांसपोर्ट फूड एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट करता है फूड को और अदर मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस को लीव्स से पूरे प्लांट बॉडी में, ठीक है। अब वी हैव फिनिश्ड प्लांट टिश्यूज़ और होपफुली आपने PDF से इसका काम कर लिया होगा।